Well, amid massive Kaveri protests, Prime Minister Modi has landed in Chennai to attend the Defence Expo in Mahabalipuram, a function at IIT Madras. As promised, Prime Minister Modi was greeted by black flags by fringe group TVK chanting "Go Back Modi" slogans. Meanwhile, DMK Working President M.K. Stalin has hoisted a black flag atop his residence in protest against the centre's inaction in setting up Kaveri Water Management Board. In fact, this after the DMK urged the people of Tamil Nadu to hoist black flags on their houses and balconies. In addition, a spate of protests have also been planned across Chennai by the Tamil Arts and Culture Forum, which will be protesting at Kathipara, and MDMK's Vaiko, which will be protesting near Saidapet. Keeping the protest in mind, the Prime Minister will attend the Defence Expo at Mahabalipuram, and he will be taken there by a chopper and also then attend a very closely guarded function at IIT Madras. Well, let me quickly go across to my colleague Akshay Nath, who is joining me for more on this story and the protests that are coming in from, in fact, Chennai. Akshay, now the protests have started. The government trying to shield the Prime Minister from these black flag protests. What's the situation in Chennai right now? Well, Ankit, it's a very volatile situation that we are witnessing here in Chennai today. All across the place, from the airport, we're seeing that different fractions, different political groups are protesting. And in fact, all of them carrying black flags and wearing black shirt, and also banners that read "Go Back Modi" and slogans also raised in the same effect. In many of these locations, we've even seen how black balloons have been, set free in the air. And all of those balloons were also loitering around, and this is a very intense fight that is being staged by these protesters. And one important factor that they've been talking about is how they want the Kaveri Water Management Board to be formed and how they want the centre to hear their plea. So this is the basic demand that they have, and they've said that all through the day they will continue the protest. Maybe one set of people might get detained, but then very next minute the second set of people are coming and filling those protest places. So that is exactly what we've been witnessing from around 8:30 in the morning onwards, Ankit. And it's kind of intense because Prime Minister Narendra Modi, on a day-long visit during the Defence Expo, he's not taking the road at all. He's only using his chopper to visit the different locations. He's already flown out from the Chennai airport to Mahabalipuram, and then he will be flying in his chopper to IIT, where a helipad has been set up for his arrival as well, Ankit. You know, Akshay, the Prime Minister might be using choppers and he may be able to avoid any sort of black flag protest, but ultimately this is also an indication that despite the Prime Minister and the red carpet that has been there for him by the government of Tamil Nadu, there is a difficult time politically that both the BJP, which is still irrelevant in Tamil Nadu, but somewhere trying to make inroads with the help of the AIDMK, will find in the upcoming elections. Well, this is a very, very bad scenario for the BJP because, now they've created an image that they're not with the people of Tamil Nadu. And all in all, they're only focused about the Karnataka elections. So that would not send a good message to all those supporters of, the Dravidian movement in Tamil Nadu. And in fact, most of the protesters Akshay, I'm afraid I'll have to stop you there. Press conference going on the Unnao rape, case in which a BJP MLA is accused. The Principal Secretary, Home and the DGP of the state are speaking. Listen in. SIT की जांच में उसमें 11 जून 2017 को पीड़िता के गायब होने की सूचना गायब हुई थी। उसके बाद 12 जून को पीड़िता की मां द्वारा थाने पर सूचना दी गई और पुलिस की दबिश में औरैया से पीड़िता की बरामदगी की गई। उसके बाद पीड़िता को कोर्ट में पेश किया गया। 164 CRPC के तहत पीड़िता का बयान हुआ और पीड़िता के बयान के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो 164 का बयान न्यायालय में दिया गया था
उसमें 4 जून 2017 की घटना, जिसमें बाद में विधायक जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसका उल्लेख उस 164 सीआरपीसी के बयान में न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया था। 1/8/2017 को इसमें कोर्ट में फिर चार्जशीट फाइल की गई। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। जो चाचा ने बयान दिए एसआईटी के सामने, उसके अनुसार 30 जून 2017 को वो पीड़िता को लेकर के दिल्ली चले गए और दिल्ली में 4 जून 2017 की घटना के बारे में पीड़िता ने अपनी चाची को बताया। उसके बाद 17 अगस्त 2017 को पहली बार पीड़िता ने 4 जून की घटना के बारे में एप्लीकेशन दिया विभिन्न स्तरों पर। उस एप्लीकेशन के आधार पर जनपदीय पुलिस द्वारा जांच की गई और 164 सीआरपीसी के बयान में चूंकि उल्लेख नहीं था विधायक जी का, इस वजह से उसमें कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की गई। 3 अप्रैल 2018 की जो घटना है, जिसमें पीड़िता के पिता के साथ में मारपीट हुई और कालांतर में उनकी डेथ हुई, उसके बारे में जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने है। चूंकि इसमें जिला चिकित्सालय के रोल पर, कारागार के स्तर पे भी ये कुछ आरोप लगे थे लापरवाही के या शामिल होने के, तो इसलिए इसमें 2 पृथक जांचें और कराई गईं। एक डीआईजी प्रिजन श्री लव कुमार, उनको भी भेजा गया। इससे पहले जेल सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट ली गई थी और डीआईजी प्रिजन ने भी अपनी रिपोर्ट कल शासन को सबमिट करी। एक जिलाधिकारी उन्नाव से अपेक्षा की गई थी कि हॉस्पिटल का इसमें क्या रोल है, उसके बारे में भी एक कमेटी गठित करा करके छानबीन करा लें। तो सीएमओ की अध्यक्षता में, जिसमें 2 एसीएमओज भी थे, कमेटी ने जांच करी और जांच के बाद में जो मृतक है उसके जेल में दाखिले से पहले चिकित्सालय में जो उसको उपचार दिया गया या जेल में भर्ती के बाद में जब जेल ने रेफर किया उसको चिकित्सालय में, उस समय जो उसको ट्रीटमेंट दी गई, उसके बारे में विस्तार से छानबीन डीआईजी की रिपोर्ट में भी हुई और जिलाधिकारी द्वारा जो कमेटी गठित हुई मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में, उसने भी विस्तृत जांच करी। उस दोनों में ही ये पाया गया कि जो समुचित चिकित्सीय परीक्षण जेल में दाखिले से पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो जेल में जब दाखिल होने के बाद में उसको जिला चिकित्सालय के, जब उसको जेल के चिकित्सालय में भर्ती किया गया और वहाँ से उसको फिर जब रेफरल किया गया जिला चिकित्सालय में, रेफरल करते समय जेल ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इसको, क्योंकि इसकी अंदरूनी चोटें प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इसको जिला चिकित्सालय में भर्ती करके उपचार कराया जाए। उसके बावजूद भी उसको वापस जेल में भेज दिया गया। इसके आधार पर चिकित्सकों की लापरवाही परिलक्षित हुई, जिसमें जिला चिकित्सालय के सीएमएस, एक जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर था प्रशांत उपाध्याय, इन 2 के निलंबन के लिए कार्रवाई की जा रही है और 3 अन्य डॉक्टर्स जिन्होंने एग्जामिन किया था और जिनको भी चोटों के बारे में और उसकी दशा के बारे में सही आकलन करना चाहिए था, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है। इसमें पूरे तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि 4 जून की घटना के बारे में
मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। अग्रेतर कार्यवाही सीबीआई साक्ष्यों को कलेक्ट करके उसके आधार पर करेगी। जो बाकी 2 मुकदमे 3 अप्रैल की घटना के बारे में हैं, वो भी चूंकि कनेक्टेड हैं, इसलिए उनको भी विवेचना के लिए सीबीआई को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का निर्णय लिया गया है। एसआईटी जो गठित है वो अपना कार्यवाही कर रही है। तो ये कार्यवाही, ये निर्णय उन्नाव की घटना के बारे में किए गए हैं। कोई प्रश्न? जैसा कि आपको बताया गया, हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो चार्ज एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उसे उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। एक सेकंड, हाँ, मैं नहीं समझा आपके प्रश्न को। नहीं, मुकदमा दर्ज करके हमने उस मुकदमे की विवेचना को सीबीआई को हैंड ओवर किया है। हमेशा ये प्रक्रिया एक करके सवाल पूछे। विधायक एकदम स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, क्या सीबीआई ने पूरे मामले को टेकअप कर दिया है आप लोगों के जरिए? देखिए, आज ये रेफरेंस जाएगा, रात में निर्णय हुआ है, आज ये रेफरेंस हम भारत सरकार को भेजेंगे। उनकी अपनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी। मैंने जैसा बताया कि आरोप के आधार पर फिलहाल ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें अभी समुचित साक्ष्य संकलन अब सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। अगर इसमें एडिक्वेट एविडेंस अवेलेबल होता है तो अग्रेतर निर्णय इसमें सीबीआई के द्वारा लिया जाएगा। देखिए, नॉर्मली इसमें यही प्रक्रिया रहती है कि जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती तब तक विवेचना स्थानीय स्तर पे जारी रहती है। तो ये मैंने बता दिया, जो इसमें प्रोविजन है वो यही है कि सीबीआई के टेक ओवर करने तक विवेचना जहाँ पे दर्ज है वो स्थानीय तौर पे वो प्रचलित रहती है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी रहेगी जब तक कि सीबीआई इसको टेक ओवर नहीं कर लेती। इस बीच में एडिक्वेट साक्ष्य अगर मिलेंगे तो अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट यस, वन एट अ टाइम। Who is defending? Who do you say नहीं, that is defending? देखिए इसमें I am not defending. I am not at all defending. Please. All that I said was that he's an accused. He's an accused. He hasn't been convicted. He's an accused, and I'm not defending.
Mind it, I am not defending anyone. He stands as an accused in the court of law, and he will. Why is he a free man? He should be arrested. Everybody is a free man unless he is convicted or arrested. Case has been registered against him, and now the CBI will decide whether गुण दोष के आधार पे क्या उसको करना है. देखिए एक चीज, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रिप्लाई. जैसा मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इसीलिए आपके सामने पेश किया था कि 4 जून की घटना का उल्लेख जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया था पीड़िता ने, उस समय नहीं किया गया था. दिस इज ए डिस्क्रिपेंसी. अब SIT ने जब उसका बयान लिया है और उसके रिलेटिव्स का लिया है, तो उसका ये कहना है कि मैं डरी हुई थी, मैंने इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने उस समय बयान नहीं दिया. इस चीज़ का संज्ञान लेकर के अभी फिलहाल FIR दर्ज कराई गई है. अब इसमें फर्दर एविडेंस कलेक्ट कराया जाएगा, विधायक जी का पक्ष भी देखा जाएगा. उसमें अगर पर्याप्त एविडेंस मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. शासन की कोई मंशा किसी को बचाने की नहीं है. हम इसमें पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आप भी सभी चाहते हैं. इसीलिए इस केस को CBI को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है कि जिससे कि इसका पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी के द्वारा हो सके और निष्पक्ष हो सके, निष्पक्ष साक्ष्य संकलन हो सके. मैंने बताया साक्ष्य संकलन तब तक यहाँ पे चलेगा, अगर साक्ष्य मिलेंगे और फर्दर तो अग्रेतर कार्रवाई होगी. आपको लगता है कि FIR दर्ज हो गई है, अब जब CBI जांच देगी, 4-5 दिन हो गए और देखिए, इसीलिए ये भी निर्णय है कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिससे कि वो कोई भय उनको महसूस ना हो और वो सही अपना. उसके बाद में तो CBI को वैसे भी ट्रांसफर होगा, जाएगा, जो भी टाइम उसमें लगेगा, तो वो बिना भय के अपनी बात रख सकें, इसलिए उनको सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया. वन मोर क्वेश्चन, जस्ट वन मोर क्वेश्चन. मिस्टर कमाल खान जी बताएं, जस्ट अ मोमेंट. हाँ बताएं मिस्टर कमाल खान. हाँ बोलिए. चाहते थे कि जिन दफाओं में मुकदमा दर्ज किया गया है विधायक के ऊपर, क्या हमेशा इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है, जब छानबीन हो जाती है तभी पकड़ा जाता है? देखिए, या सिर्फ इस केस में पॉक्सो एक्ट आप कुछ बताएं है, या सिर्फ इस मामले में ऐसा किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक उन्नाव पुलिस की भूमिका का संबंध है, आप सभी जानते हैं कि हमने SIT गठित कर दिया है. SIT में कल ADG लखनऊ जोन वहाँ गए, उन्होंने एक प्रथम दृष्टया एक कार्रवाई की, और जितने भी हमारी वहाँ पे साक्ष्य संकलन का काम है, जब तक CBI टेक ओवर नहीं कर लेती है तब तक SIT उनकी चीज़ों को देखेगी, उनको कलेक्ट करेगी, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करेगी. द मोमेंट वी सेंड द रिपोर्ट एंड द CBI टेक्स ओवर द केस, उसके बाद CBI अपने गुण दोष के आधार पे जो भी उनके पास साक्ष्य होगा, उस आधार पे विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, चाहे वो अरेस्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो. लेकिन उसके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी हमने बना लिया है, SIT का गठन किया गया है, जो क्लोजर सुपरविजन ADG लखनऊ जोन के अंतर्गत कर रही है. तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है कि हमारी भूमिका में कोई संबंध देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा. जो FIR रात में दर्ज हुई है उसका मैं डिटेल शेयर कर दूं. वो मुकदमा, एक मिनट, वो निर्णय लेंगे. FIR की डिटेल्स देखिए कुछ जिन लोगों के स्तर पे प्रथम दृष्टया SIT की जांच में लापरवाही परिलक्षित हुई है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. SIT की जांच में फर्दर में अगर और किसी के स्तर पे लापरवाही पाई जाएगी, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी हो. शासन की, मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई मंशा नहीं है किसी भी दोषी को बचाने के लिए. और
इसीलिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कार्रवाई के लिए वो संडे को यहाँ पर पीड़िता आई थी, लेकिन उस दिन आप लोग की जानकारी में सबके मामला आ गया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखिए एक्शन उसके बाद में एक मिनट, देखिए ऐसा है, उसका संज्ञान लेकर के ही तुरंत विवेचना उन्नाव से लखनऊ ट्रांसफर की गई थी क्राइम ब्रांच को। उसके तत्काल बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी। उसके बाद में प्रिजन की भूमिका और चिकित्सालय की भूमिका के बारे में शासन ने त्वरित कार्रवाई करी। विद इन ए डे उनसे रिपोर्ट एक्सपेक्ट की गई। इन सब के बाद तथ्यों के और साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आगे भी अगर कोई प्रकाश में आते हैं किसी के लेवल के ऊपर की शिथिलता बरती गई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थैंक यू। All right, that is the Home Secretary and the DGP of Uttar Pradesh. You know, this is shocking to say the least, the way the accused MLA was being addressed by both the senior officials there in Uttar Pradesh. Nobody is accusing them, you know, as of now of a cover-up, but the kind of laxity that has been seen in not arresting, trying to deflect the question of the arrest despite an FIR being registered, saying that the CBI is now going to take over the case. Till that time, it seems that the MLA, of course, till the CBI does come to a conclusion that they have to arrest the MLA, nothing is going to happen against this, you know, accused MLA. Maniniya Vidhayak, despite being accused of such a heinous crime. Very quick break at this point of time. We'll come back. Our top focus remains on the Unnao story, where the MLA of the BJP who has been accused of rape, the Home Secretary and the DGP there addressing the media. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.